Namaskar and welcome all the viewers here. Today's episode is going to be really very special, truly special for us because we have today Padam Shri Professor H.C. Verma. I know he does not need any introduction, but still for formality's sake I have to introduce sir to you all. So sir has been instrumental in changing the way the science is taught in our country, and Bharatiya Shiksha Board has been honored that he gave his consent to guide our science team, and our science books are being made under sir's guidance. So today we are going to talk to Verma sir regarding the newly developed science books. There is a speciality of these books. These books bring alive the science through exploration, through real life connections, through experiential learning, which we talk about very widely these days. And sir has left no stone unturned in turning our books miracles. There are mysteries in the books which when the children will read through those books, their curiosity will develop, the spark and the love for science will develop. So let's begin. A very warm welcome to you, sir, here. Thank you. And to start with, my first question is that whenever some creation happens, so there is always some idea, So what was your idea to create such beautiful books for Bharatiya Shiksha Board? See, the idea was very simple, that whether we study or not, but we cannot avoid living in science. Right, sir. Everyone, each creature right. has to live in science. And therefore, the science students who want to pursue science or make career in science or career anywhere with scientific temperament, right, they should have a real pleasure of learning science. Right. So that was the basic idea, that unless you get pleasure in something, you cannot concentrate at that topic, or you cannot really work hard for that topic if you don't get pleasure out of it. Right. The basic idea of all these books, or the style chosen and the kind of descriptions given, content, all are tuned towards giving the pleasure of learning science. That's excellent, sir. That's excellent. I would like my viewers to see these books. Just for a second. This is the beauty of the book. Sir, you have named them as a Vigyan Katha. This generally in Hindi we call science as Vigyan. So this is for all the viewers that in Sanskrit there is no Gya. So हम उसको ज अक्षर से प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए हमारी किताबों का नाम है विज्ञान कथा, which comes from Indian knowledge system. So my next question to you, sir, is that Bharatiya Shiksha Board talks about integrating Indian knowledge system into these books. So can I have one or two examples where the Indian knowledge system has been implemented and contributed to along with the modern scientific concepts? There are many. Right. The most recently, I have included, or we have included, the chapter on story of copper, iron, right. And brass. Right. Now, this is something which really one should know it. That some 2000 years after this current era, and then go back another 2000 years. So something like 5000 years ago. Right. The kind of metal smiths that we had in India, right, they were actually doing wonders. The metal extraction, then smelting, and then getting pure metal out of it, and then proper alloying. All this is marvelous. I will particularly mention this brass thing. Now, from Archaeological Survey of India, those excavations were done
and they got a kind of a brass artifact Right. which has some 33% of zinc with copper. Now the modern researchers show that to get this 33%, anything more than 28% can only be done if you have separate zinc metal with you and Okay. separate copper metal with you, and then you alloy it. जी. If it is in the ore itself, you have zinc and copper together, and then from there if you want to make brass, it has to be less than 28% of zinc. Now this some 5,000-year-old artifact which has been obtained from that excavations, and that is showing that 33% of more than 33% of zinc tells that we had the technology that time to extract pure zinc metal from the ore. Excellent. Now this is such a difficult job that in Europe first time zinc could be separated only in the current era, some 1748 or so. Current era, Right. that means 300 Right, years ago. 300 years ago. And in our case, it was there some 5,000, 5,000, 10,000, 5,000, then Right. 2,000, then 1,000. And then 4th century BC, we have this in Rajasthan, they have excavated a site, this MSU, University of Baroda and these people, where a huge amount of crucibles where zinc was melted Right. have been found. Right. So it's not only that we had developed our systems of this zinc extraction, it was a big industry at that Already. scale. Already. Yes. और उसके हमारे पास प्रमाण हैं. Praman, I'm not talking from Shastras. Right. I am not talking from scriptures. I am हाँ, not मगर talking हमारे from पास read Bible. references तो हैं ही उन सब हाँ, चीज़ों. these are anyone can go there. Right. Anyone can go there. Right. Go to Rajasthan. It's 27 kilometers from Udaipur. जी. That's Zawar. जी. Hindustan Zinc Limited has taken over that in same area with the same minerals and same ores. They are now producing a lot of zinc and doing that. So how that Indian knowledge system can be integrated in the modern times? Yes. This is an example of that. Excellent. Okay. This is Hindustan. Thank you so much, sir. Right. This is really fascinating, very fascinating. I have recently read this book, and the very first chapter, it's so interesting that you have explained about the sky and its layers and their characteristics through a conversation between a child and a bird. तो ऐसा आपके विचार में कैसे आया कि हम एक बच्चे को एक गौरैया से बात करते हुए दिखाएं और उसी में हम पूरी साइंस पढ़ा दें? Right. वो बहुत सुंदर लगा मुझे. Right. जी. हाँ, देखिए कुछ तो हमें ऐसा करना है कि बच्चे उसको एब्जॉर्ब करें और उसका प्लेजर ले. मैंने शुरू में कहा प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, की वर्ड. पढ़ने के अंदर में हमें आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए. This is class 6 book. So the age group is around 11 years. Yes, 10, 11 absolutely, years. sir. बिल्कुल. So knowing that my audience is an 11-year-old child, तो उसको कहानी कहनी है. The whole class 6 book, 19 chapters and 19 stories of different kinds. जी. Right? जी. So that was the idea, that how we can engage the child not through giving the information, but the information we have to give. Right. So it was wrapped, it's a packaging. हाँ. Packaging is more important. हाँ, बहुत सुंदरता से Nowadays. हाँ, आपने आसमान के विषय में और Right. उसकी परतों के बारे में, उसमें Right. उसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसकी डेंसिटी, उसका Right. टेम्परेचर, हम Right. सभी के बारे में बताया सर. राइट, वो सभी कुछ हो गया और सभी कुछ एक कल्चर डेवलप हुआ है. उस चैप्टर को चूँकि आपने पढ़ा है तो आपने देखा है कि हम उस बच्चे की कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ा रहे हैं. वी आर नॉट ओनली गिविंग देम द इंफॉर्मेशन कि ये इतने हाइट के ऊपर इतना टेम्परेचर है, ऐसा है वैसा है, बट हाइट की बात आती है तो वो बर्ड कहता है कि वो जो तुम्हारा जो कज़िन है वो 7वीं मंजिल के ऊपर रहता है, तो वो जितना हाइट है पहले उसको कैलकुलेट कर लो. हाँ. उसका इतना टाइम्स हाइट तक मैं उड़ के जाता हूँ. सो वी आर डेवलपिंग मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस इन द चाइल्ड. राइट. वो एक अपने कमरे की हाइट नापेगा. हाँ. उसका एक्सपेरिमेंटल स्किल हम बढ़ा रहे हैं.
वो टेबल पे खड़ा होएगा, ऊपर में कोई डंडा लगाएगा, कुछ करेगा, कुछ करके उसका निकालेगा। देन 7 स्टोरीज में कितना बनेगा, जी, देन उसका कितना टाइम्स वो वर्ड बोल रहा है। So through all these stories, we are not just passing on the scientific information, we are also increasing the skills. Right. Mathematical skills, logical skills, analytical skills from this very beginning. So these Yeah, are so the we are kind of talking things. about all 21st century skills that this book is going to cater to. Yes. Excellent, sir. Thank you so much for this information. एक दिमाग में मेरे और सवाल आ रहा है सर कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे जो ये किताबें हैं हमारी, मतलब जब आजकल बच्चों को, क्योंकि उनके करियर के लिए बहुत सोचा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट they have to prepare for those competitive examinations, they have to appear for JEE, they have to appear for NEET, when we talk about mainly the careers through science and humanities and biologies. तो क्या हमारी ये किताबें बच्चों को उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगी? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश को सभी कुछ चाहिए जी। हमारे देश को केवल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल इतना ही नहीं चाहिए, हमें अच्छे आर्टिस्ट भी चाहिए, फाइन आर्ट्स चाहिए, हमें म्यूज़िक करने वाले चाहिए, हमें लॉयर चाहिए, हमें बिजनेस पर्सन चाहिए, सभी कुछ चाहिए। लेकिन साइंस की किताब है तो अपने साइंस के डोमेन में काम करेगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हम क्लास 6 से ही डेवलप कर रहे हैं। हाँ, that's what my question हम was. क्लास 6 से ही डेवलप कर रहे हैं, और स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। Right. वो उसको एक नेचुरल फ्लो में वो हो रहा है, बिना किसी प्रेशर के बिना बच्चे किसी सीख प्रेशर के सीख रहे हैं। जो चीज़ों को एनालाइज करना है, प्रश्न खड़े होने चाहिए मन के अंदर में, लॉजिकली एक से दूसरे को कनेक्ट करना है। दीज आर द थिंग्स विच आर वाइटल फॉर गोइंग थ्रू दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड स्कोरिंग एंड। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके खुद ही उसको डेवलप करते चले जा रहे हैं किताब के अंदर में, इन ए वेरी वेरी नेचुरल वे। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कोई कोचिंग हो रही है या अलग से कुछ पढ़ाई हो रही है या और कुछ। ये सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, क्योंकि नहीं तो बच्चे सर आजकल तो छठे से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते हैं, तो जो ये विज्ञान कथा है वो ऑटोमेटिकली बच्चों को उस रास्ते की तरफ ले जा, अगर वो जाना चाहते हैं तो। अगर वो जाना चाहते, अगर वो नहीं जाना चाहते, अगर वो मान लो कि क्लास 12 करने के बाद या 10 करने के बाद कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। मेरे ने इस किताब ने अगर मुझ में सोचने की शक्ति डेवलप कर दी है, इफ़ आई कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स, जो सब कुछ चल रहा है, लीक का चल रहा है, मैं उससे हट करके कुछ सोच सकता हूँ, तो मैं जाऊँ ना कॉमर्स में, क्या दिक्कत है? ये किताब मेरे को बहुत हेल्प करने वाली है वहाँ पर भी। तो ऐसा नहीं है कि ये किताब साइंस की है तो जो साइंस लेंगे आगे उन्हीं को इससे मदद मिलने वाली है। वो जो सोचने का तरीका अगर आ गया, मैथमेटिकल स्किल्स अगर हमें आ गए, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना अगर हमें आ गया, तो हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो ये किताब सबको तैयार कर रही है, कॉमर्स वालों को भी तैयार कर रही है, आर्ट वालों को भी तैयार कर रही है, जो आर्किटेक्चर करेंगे उनको भी तैयार कर रही है, जो डिज़ाइन में जाएंगे, बाद में फैशन डिज़ाइनिंग में जाएंगे, उनको भी तैयार कर रही है, सबको तैयार कर रही है ये किताब। थैंक यू सर। मतलब मुझे तो, मैंने तो किताब पढ़ी मगर शायद उस तरीके से अभी तक नहीं सोचा, अब मैं उसको दोबारा पढ़ने वाली हूँ इस तरीके से सोचने के लिए। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है सर मेरे, एक प्रश्न कि जैसे कुछ मतलब जो मैंने देखा, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बुक, इट्स नॉट ओनली अबाउट द थिंकिंग और द कंटेंट, द स्ट्रक्चर एंड द डिज़ाइन ऑफ द चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। There are so many boxes given there. Let's explore, then question basket, then learner's basket, then science in ancient time, then our glorious heritage. So how do you think these boxes are helping nurturing the scientific temper in children? देखिए, ऐसे है कि जब इसकी रचना हो रही थी जी, क्लास 6 से शुरुआत हुई जी, और इन क्लास 6 में जैसे मैंने कहा कि देयर आर 19 चैप्टर्स एंड देयर आर 19 स्टोरीज, तो हम सारी कहानियों के माध्यम से ही सब कुछ सिखा रहे हैं।
तो कहानी पढ़ने का जो आनंद है, अगर बीच में मैं कहूँ कि ज़रा ये मल्टीप्लाई करके ले आओ या डिवाइड करके ले आओ, तो कहानी पढ़ने में आती है अवरोध, है ना, बाधा आती है उसके अंदर में, वो एक स्पीड ब्रेकर हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो हम उसको सेपरेट बॉक्सेस करते हैं, जो चीज़ें हमें उनको ऐसे सिखानी है थ्रू द स्टोरी चीज़ें आई हैं, बट देन टू डेवलप दोज स्किल्स हमें कुछ अलग से प्रश्न करने हैं, कुछ अलग से बातें सिखानी है, कुछ अलग से गणित सिखाना है, कुछ अलग से प्रश्न पूछने हैं। तो कहानी पढ़ने के आनंद में बाधा नहीं आए, इसलिए हमने उसका बॉक्स कर दिया, यू कैन स्किप दिस। ओके, आप ऊपर से नीचे तक कहानी पढ़ने के मजे ले लो, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, विदाउट एनी दिस स्पीड ब्रेकर। अरे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे पहले इस प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद फिर और आगे कहानी पढ़ना जी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू दैट, बट आपको लग रहा है कि द स्टोरी इज़ वेरी एब्जॉर्बिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो बीच में आप कुछ और नहीं करना चाहते हो, तो हमने उसको घेर के इसीलिए छोड़ा कि आप पढ़ लो कहानी, पूरी कहानी पढ़ लो, उसके बाद अब आप उन बॉक्सेस पे जाओ और अपने रियल स्किल्स बढ़ाओ। और चूँकि वो सारी कहानी का बैकग्राउंड ऑलरेडी है, तो वो बॉक्सेस में जो भी कुछ कहा गया है, करने के लिए कहा गया है, या कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, या हाथ से कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, तो वो सब चीज़ें नेचुरली फिर वो बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएंगी। तो वो क्लास 6 का जो डिज़ाइन था वो हमने क्लास 7 और क्लास 8 तक में थोड़ा थोड़ा रखा है। हम क्लास 9th पे जब काम कर रहे हैं तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा बदलेगा, अब आपको बॉक्सेस कम दिखाई देंगे। ओके सर, ऑलराइट सर। क्या 6th से जब हम 7th पे जा रहे हैं, 7th से 8th पे जा रहे हैं, तो क्या हमारी चैप्टर्स की संरचना कुछ बदल रही है पाठों की? 6, 7, 8 में ज़्यादा नहीं बदल रही है। ये है कि 6 के अंदर में हमने कंप्लीट स्टोरी रखी है शुरू से आखिरी तक। क्लास 7 में जब हम गए हैं तो हमने थोड़ा उसका डिवीज़न किया है। हमारी स्टोरी अभी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्लास 7 में भी, लेकिन वो स्टोरी थोड़ी दूर तक चलती है। मान लो अगर 15 पेज का चैप्टर है तो 4 पेज तक में स्टोरी चलेगी या 3 पेज तक में स्टोरी चलेगी। अब स्टोरी का काम ख़त्म होने के बाद उसी स्टोरी से जो बैकग्राउंड बिल्ड किया है मैंने उस कंटेंट के लिए, उस कंटेंट के ऊपर अब सीधी बातचीत होगी। अब सीधी बातचीत होगी। बच्चा मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा मैच्योर हो गया तो कहानी से उसको मज़े मिल गए हैं। और उसी कहानी के ही बेस के ऊपर जो वहाँ मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, उसी प्लेटफॉर्म पर आगे का पूरा चैप्टर है। तो ये थोड़ा परिवर्तन वहाँ पे आया। फिर हम क्लास 8 में आए हैं तो हमने कहानी का एलिमेंट तो हटा दिया है जी, बट इट इज़ स्टिल वेरी इंटरैक्टिव and is still talking to the parents, Right. talking to your cousins, talking to your friends, talking to your teachers. ये टॉकिंग जो है, जो कि क्लास 6 से शुरू हुई है, वो क्लास 8 में भी भरपूर मिलेगी और आगे भी मिलेगी, 9, 10th में भी मिलेगी। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी संरचना बदली है 6, 7, 7, 8। एक बस चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे कि जो जैसे हम किसी भी पाठ को शुरू कर रहे हैं, चाहे 6वें में या 7वें में 8वें, तो सबसे पहले हमने एक श्लोक से शुरू किया है उसको, तो उसका सिग्निफिकेंस सर जानना चाहूँगी। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि हमने हमारी जो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि हमारा देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है, अध्यात्म का देश है, फिलॉसफीज़ का देश है। एट द सेम टाइम हमारा देश विज्ञान का देश है। तो ये चीज़ साधारणतः जनमानस में नहीं गई है। जनमानस में यही गया है कि हमारी जो भारत की जो उसका जो झंडा है वो विश्व में किस लिए ऊंचा है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िलॉसफीज़ डेवलप हुई हैं, हमारे यहाँ जीवन पद्धतियाँ डेवलप हुई हैं, हमारे यहाँ तरह तरह के वो कर्मकांड बने हैं, तरीके बने हैं जिससे हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सब है, ठीक है, लेकिन हम विज्ञान भी उतना ही अच्छा, हार्डकोर विज्ञान भी उतना ही अच्छा करते हैं। हम उसी प्रकार से अपने शास्त्रों के अंदर में वो प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, कैसे निकलती हैं, कहाँ ऑब्जर्व होती हैं, कहाँ चलती हैं, ये हमारे शास्त्रों के अंदर में लोगों ने करके रखा हुआ है, लोगों के जहन में था। तो इस चीज़ को लाने के लिए हमने वो इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि हमने एक श्लोक शुरुआत के अंदर में दिया है। उस चैप्टर की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित
वराहमिहिर ने क्या लिखा है, और बहुत सारे आर्यभट्ट ने क्या लिखा है, या हमारे ऋग्वेद में क्या लिखा है, या हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है, हमारे अथर्ववेद में क्या लिखा है, तो उसका हम वो दे करके एक श्रद्धा का निर्माण कर रहे हैं कि हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वजों ने अगर 5000 साल पहले, 8000 साल पहले, 9000 साल पहले ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं विज्ञान से के विषय में, इंद्रधनुष कैसे बनता है, हाँ, तो ऐसी ऐसी अगर उन्होंने बातें की हुई हैं तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो निर्माण करने के लिए वैसा है। इसी तरह से जो हमारा साइंस इन एंशिएंट टाइम्स है या आवर ग्लोरियस हेरिटेज है, वो जो बॉक्सेस हैं वो हम साधारणतः चैप्टर के आखिरी में देते हैं। तो वहाँ पर जब उस चैप्टर की सारी हमने बातें कर ली हैं, फिर से हम पीछे जाते हैं कि हमारे पुराने जो लोग रहे हैं यहाँ पर, जिनको हम वैज्ञानिक कहेंगे, वो पूरे ऋषि अर्चना से ही, और रिसर्च शब्द शायद जुड़ता है ऋषि जो अर्चना करते हैं उसी से रिसर्च का शब्द जुड़ता है। जी सर। तो हमारे जो ऋषि हैं वो वैज्ञानिक हैं। वो तो उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए थे, उन्होंने किस तरह की चीज़ें निकाली थी, वो फिर से हम वो एक बड़े पैराग्राफ के अंदर में ग्लोरियस हेरिटेज या साइंस इन इंडियन, भारत की विज्ञान यात्रा, इन नामों से उसको हम लेकर के फिर से एक बार उस श्रद्धा का निर्माण करते हैं, आत्मगौरव का निर्माण करते हैं कि अरे हमारे जब पूर्वज वैसा कर सकते हैं उस समय में, हज़ारों साल पहले, तो आज की तारीख में हम कैसे नहीं विश्व गुरु बनेंगे। तो उसका निर्माण करना है। लेकिन जो बीच का है, जो पूरा हार्डकोर चैप्टर है, श्लोक के बाद से लेकर के और अंतिम बॉक्स तक के बीच का, वो पूरे आज हमें 21वीं शताब्दी के अंदर में जो विज्ञान चाहिए वो है। उसके अंदर कहीं कोई समझौता या किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। Thank you so much, sir. Thank you very much for such wonderful explanation of the science books of Bharatiya Shiksha Board. I'm sure that our viewers, okay, must have understood now the importance and significance of science books of Bharatiya Shiksha Board. And I'm also sure that the children who will be studying these books will definitely be taking pride in their heritage, in their traditional scientific heritage that we must talk about, along with studying the modern concepts. Thank you very much. Thank you so much. Namaskar. Namaste, sir.